बच्चों, let's read the given question. The question says an electron moving with speed 5 into 10 raised to 6 meter per second is shot parallel to the electric field intensity having value 1 into 10 raised to 3 Newton per Coulomb. Field is responsible for the retardation of motion of electron. Evaluate the distance traveled by the electron before coming to rest for an instant. Mass of electron given है हमें 9 into 10 raised to minus 31 kg. Charge has been given as 1.6 10 raised to minus 19 Coulomb. Option A 7 meter, option B 0.7 mm, option C 7 centimeter, option D 0.7 centimeter. So to understand the given question, we must understand as a key concept about the electric field intensity value. So we know कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, so it experiences a force which is given by the formula F equals to QE. So यहाँ पे we need to understand कि अगर let's suppose we have a uniform electric field which is directed towards right side, and इसके अंदर if we place a positive charge, so this positive charge will experience a force QE in the direction of electric field, right? लेकिन अगर हमने उसमें negative charge रखा तो it will experience a force in the direction opposite to that of electric field, and magnitude इसका भी QE होगा, right? So this is the basic understanding we must have. Also we can say ये जो force लग रही है, force is q into e in terms of magnitude we are writing, and also force को हम क्या लिख सकते हैं, mass into acceleration, since the particle is having force on it, so it will be accelerating. So by Newton's second law, force can be written as mass into acceleration, so that will be equals to QE. So यहाँ से acceleration we can calculate QE by m, right? अब यहाँ से also we can see that since it is a case of a accelerated motion, so we can uniform accelerated motion basically we can say. So in such situation, the kinematical equation, that is 3 kinematical equation we can apply over here, that is v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square, and v square equals to u square plus 2as. So these are valid or applicable over here. तो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि we have electric field, let's say हमने मान लिया इसको right word है ये, and उसकी intensity हमें E की value given है, that is 10 raised to 3 Newton per Coulomb, right? और हमसे बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को हमने इसमें फायर किया है, and this electron is been fired. So with initial speed हमें given है u, that is 5 into 10 raised to 6 meter per second से. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि since it is moving ahead with u velocity, इसके ऊपर एक acceleration या फिर हम यूँ कहें कि retardation लग रहा होगा पीछे के डायरेक्शन में, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड में, सो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा पीछे के डायरेक्शन में, तो वी कैन से एक्सेलरेट रिटार्ड होगा ये कंटिन्यूसली, इट विल कीप ऑन रिटार्डिंग, एंड एट सम इंस्टेंट इट विल इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है ना? सो अब यहाँ पे हम एक ही वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, सो वी कैन जस्ट हैव द फॉर्मूला दैट इज ए इज इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. सो यहाँ से हम एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो वी आर जस्ट कैलकुलेटिंग इट्स मैग्नीट्यूड, सो नेगेटिव साइन हम यहाँ पे नहीं लगा रहे अभी. क्यू ई अपॉन एम, अब यहाँ से q की वैल्यू हमारे पास चार्ज की वैल्यू है 1.6 10 raised to minus 19, e हमें गिवन है 10 raised to 3 डिवाइडेड बाय मास हमें गिवन है 9.1 10 raised to minus of 31. सो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आएगी, दैट इज कमिंग आउट टू बी 34 माइनस ऑफ 19, 34 माइनस ऑफ 19 हम करेंगे तो इट विल बी 15 10 raised to 15, एंड इनटू ये वैल्यू आएगी हमारे पास 0.18. सो दिस इज व्हाट द एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास आ रही है इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज वी कैन से इसको हम लिख सकते हैं 1.8 10 raised to 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट द रिटार्डेशन बेसिकली हमें मिला ये. सो अब हम क्या करेंगे, वी हैव टू सी के अब ये फाइनली रेस्ट पे जाने वाला है, इलेक्ट्रॉन विल कम टू फाइनली एट रेस्ट, v विल बी 0. अब हमसे पूछा जा रहा है वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस, यानी कि s हमें कैलकुलेट करना है. सो बाय थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन, जिसको हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन भी कहते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v तो 0 हो जाएगा, फाइनली इट विल कम टू रेस्ट, सो u स्क्वायर 0 विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर. अब यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस साइन, बिकॉज एक्सेलरेशन की जगह ये है रिटार्डेशन. सो एक्सेलरेशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स राइट हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेट ये टुवर्ड्स लेफ्ट हो रहा है, राइट? सो इन सच सिनेरियो वी कैन से s की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, u स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a, सॉरी. अब यहाँ से वी कैन से u स्क्वायर जो है हमारे पास, इट कैन बी रिटन एज 25 इंटू 10 raised to 12 डिवाइडेड बाय,
यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू ए को हम यहाँ पे अगर चाहिए तो हम लिख देते हैं 18, राइट, 18 इंटू 10⁻13 कर देते हैं हम इसे, ठीक है ना। सो फ्रॉम दिस वी कैन से जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट विल बी 25 divide by this value of s comes out, and this has to be 36 over here क्योंकि 2 भी है यहाँ पे. So this can be written as 0.69 into 10⁻⁻1 and in meter, ठीक है ना. So इसको हम क्या लिख सकते हैं, from this we can say, इसको हम अप्रोक्सीमेट अगर कर लें, so we can say it can be written as 0.7, या फिर इसको ऐसा लिख देते हैं 7 into 10⁻2 मीटर्स, और अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, सो दिस रिजल्ट विल बी ऑफ एस कम्स आउट टू बी 7 सेंटीमीटर. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन सी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.